मुझे लगता है पॉलिटिक्स से ना लोगों का मन भर गया है बहुत हद तक. एन ऑर्डिनरी मुस्लिम लिविंग इन इंडिया, व्हेन ही और शी वेक्स अप इन द मॉर्निंग, आवर फर्स्ट थॉट इज़ नॉट कि हमें हिंदू टेम्पल जलाना है, आज मुझे कौन सा हिंदू टेम्पल डिस्ट्रॉय करना है. नो, दैट्स नॉट व्हाट वी थिंक. मेरी खाला वो जो है वो गुजर गई अब तो. वो एक बार शी सर्वाइव्ड अ बॉम्ब ब्लास्ट. माई कज़न, शी वॉज गोइंग टू कॉलेज, कुछ टेयर गैस शेल उनको लग गया, उनको यहाँ पे इंजरी आ गई. ठीक है, देयर इज एवरी फैमिली इन कश्मीर which has suffered. I just found myself asking this question, how do we actually stop this? And I don't know how to stop this. So what do I say to Kashmiri Pandits? Like when I ask them to come back, कुरान मजीद में कई जगह पर लिखा हुआ है जुल्म, जालिम, काफिर. इसको ना थोड़ा कॉन्टेक्चुअलाइज करना पड़ेगा. जो मुस्लिम कम्युनिटी को दिन रात जिहादी, पाकिस्तानी, and I don't want to repeat the other words, you know what the words are, वो पार्लियामेंट तक में बोले गए. Where do you go from here? Student politics वो एक था, writing books ये एक है, academics भी you're interested ये. Yeah. And I want your answer in the framework of Kashmir. In the framework of Kashmir. Because अभी तो हम नोएडा में बैठे हुए हैं. Right. Framework of Kashmir. Hello all, welcome to Gap, the Gaurav Arya podcast. कई सारे गेस्ट आए और कई सारे गेस्ट्स ने अपने बारे में आपको बताया. आज खास मेहमान है हमारे साथ. प्लीज वेलकम शैला राशिद. Thank you so much. Welcome, ma'am. Thank Welcome you. to our show. Thanks. Shaila Rashid ji, she's an academics, she's an author and student leader at one point in time. And today we're going to talk about Kashmir and the future of Kashmir. My idea here, ladies and gentlemen, is not to talk about what has happened in the past, because you will get enough and more podcasts and information about what has happened in Kashmir since 1989. But I think it is time that we charted a map going forward. What do we want Kashmir to be in the next 20 years? And that is what we're going to talk to her about. Shaila ji, my first question is that how do you look at Kashmir 5 years from now? 370-35 से हटा है, उसके बाद क्या कोई फर्क पड़ा है, नहीं पड़ा है? जैसा सरकार कहती है जी इतना फर्क पड़ा है, उतना नहीं पड़ा, कम पड़ा है, चीज़ें बेहतर हैं और ख़राब हो गई. हाउ डू यू सी दैट? I'm so glad you asked me about the future, because most of the times I get asked about the past, but I will briefly address it. कि security situation Kashmir region में improve हुई है, Jammu region में we have challenges, right? So this is the short answer to the long story. But where do we see Kashmir in 5 years from now? That's an excellent question. So Kashmir, let me sort of beat around the bush a little bit. Kashmir has a very small land holding size. So our primary sector, which is agriculture, it has its own limitation. The land holding size is very fragmented. Second thing, the secondary sector, industries, etc. Most of the 60% of the industrial land that is earmarked, it is unusable because it's marshy or rocky or something. That leaves us with the tertiary sector. Now in the tertiary sector, if I say the service sector, mostly आपके दिमाग में आएगा tourism. But we need to move beyond tourism, because I think there is too much tourism now. The tourism is so much कि अगर आप पहलगाम जाते हैं तो पहलगाम आपको 6 घंटे जो है आप रास्ते में, जो कि मतलब 1-2 घंटे का रास्ता है, वो आपको 6 घंटे लग जाएंगे वहाँ पहुँचने में. टूरिज्म इतना ज़्यादा है. वी डोंट इवन हैव द कैपेसिटी टू आपने देखा कि ऋषिकेश में या ऐसी जगहों में, उत्तराखंड में, जो रैम्पेंट डेवलपमेंट हुआ है ड्यू टू टूरिज्म, रिवर बैंक्स पे एयरबीएनबीज बनाना, होटल बनाना, उसकी वजह से फिर इंसानी जान का कितना नुकसान हुआ. तो जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और टूरिज्म इन द सर्विस सेक्टर, तीनों के अपने अपने लिमिटेशंस हैं कश्मीर के रिलेटेड. मैं एक अलग चीज़ कह रही हूँ. मैं कह रही हूँ सर्विस सेक्टर में ही हमें एक इनोवेटिव मेथड निकालना पड़ेगा जिससे हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें कश्मीर की. इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन वी कैन कॉल इट, क्योंकि जो पिछले 3 दशक हैं, पिछले 3 डेकेड्स में पूरा का पूरा बिजनेस बर्बाद हुआ है. देयर हैज़ बीन अ लॉस ऑफ सो मेनी बिजनेस डेज. आई थिंक द अदर डे प्राइम मिनिस्टर इन हिज स्पीच सेड कि 8 years of equivalent of business days have been lost in the last 3 decades. So we 8 years wiped out. He said कि 3000 दिन जो है पिछले 30 साल में बन रहा है. और अगर आप उसको इन टर्म्स ऑफ ईयर्स देखें तो 8 साल सीधे के सीधे हमारी लाइफ से
3 साल तो मेरी कॉलेज लाइफ से चले गए हैं, तो वो तो मुझे ऐसे ही पता है। तो ओवरऑल बिजनेस का बहुत लॉस हुआ है, उसकी वजह से आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। आज अगर आपको सोचना हो कि आप कश्मीर में कोई बेकरी खोलें, कुछ खोलें, आप सोचेंगे, क्योंकि पहले कभी भी डिस्टर्बेंस हो सकता था। आज चलिए वो सिचुएशन नहीं है। हाउएवर माई इकोनॉमिक विजन फॉर कश्मीर एंड माई विजन फॉर द इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कश्मीर is based on high-tech skills, and that is something that the Prime Minister of India just emphasized when he was in the US. He met the tech CEOs. I think the high-tech sector is something we need to take more seriously. Like for example, artificial intelligence, generative AI, cloud security solutions. These are the futuristic skills. So we need to equip Kashmiri youth with futuristic skills. This is my economic vision, and it's something that I'm working on. I'm working on equipping youth with AI and generative AI skills and tech skills, social media skills. इसका काफ़ी broad ambit है. हर किसी के बस का नहीं होता AI, cloud security, network security. कोई social media पे काम कर सकता है, कोई AI पे काम कर सकता है. Generative AI has definitely. But there are a lot of Kashmiri students, very bright, who are studying from the best institutions, and those people could be students, could be, they could help out with this, because they certainly got a lot of talent and they are studying also. Yeah, we've got actually very good resources. We've got a very positive mindset के यूथ है हमारे पास, जिनके साथ हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं. तो कश्मीर में जैसे कि कई सारी प्रॉब्लम्स आप देखते हैं, टेररिज्म हो गया, ड्रग अब्यूज़ हो गया, चाहे जो कोई भी प्रॉब्लम है, सबका सोल्यूशन है कि आपको प्रोडक्टिव एंगेजमेंट देना है लोगों को. अब मैंने इतना घुमा फिरा के आंसर क्यों दिया, क्योंकि जो ट्रेडिशनली हम जिन चीज़ों पे रिलाई करते हैं, एग्रीकल्चर, टूरिज्म, इंडस्ट्री, वी विल हैव टू मूव बियॉन्ड दैट, क्योंकि उनका ना अपना, मुझे लगता है सबका सैचुरेशन पॉइंट रीच हो गया है. टूरिज्म का तो मुझे लगता है बियॉन्ड सैचुरेशन चला गया. टूरिज्म का मोर देन सैचुरेशन हो गया. देयर इज नो स्पेस एनीवेयर. सो वी नीड टू इक्विप कश्मीरी यूथ विद tech skills which they can work from anywhere. आजकल आप देखें, आजकल Fiverr है या Amazon Mechanical Turk है, AMT, जिस पे कहीं से भी, मतलब कोई भी अमेरिकन क्लाइंट, स्वीडिश क्लाइंट, टर्किश क्लाइंट, वो जो है किसी को भी हायर कर सकते हैं, क्योंकि आजकल गिग वर्क का कॉन्सेप्ट हो गया है. आजकल ये नहीं है कि आपको बैंगलोर जाना है सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के गूगल में हायर होके. वो कॉन्सेप्ट आजकल बहुत लिमिटेड है. फ्रीलांसर्स हैं, लोग जो है ऑनलाइन काम कर रहे हैं. सो दिस इज माय इकोनॉमिक विजन, क्योंकि इस पे कोई लिमिटेशन नहीं है. इसके लिए सिर्फ आपको इलेक्ट्रिसिटी, वाईफाई, ये सब चीज़ें चाहिए. अब देखिए, पहले जब सिक्योरिटी सिचुएशन ख़राब थी, तब नेटवर्क डिसरप्शन बहुत ज़्यादा होता था. लेकिन अब हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह नाउ द सिक्योरिटी सिचुएशन इज़ मच बेटर, सो वी डोंट हैव दोज नेटवर्क डिसरप्शंस. वी हैव यूथ हु आर वर्किंग विद अस. दे आर ऑलरेडी ऑन प्रोजेक्ट्स. दे आर फ्रॉम देयर लैपटॉप्स, दे आर वर्किंग फ्रॉम होम. दे डोंट नीड टू रीलोकेट एनीवेयर, एंड दिस इज़ हाउ, बाय डूइंग दिस, दे आर डेवलपिंग देमसेल्व्स. उनकी पर्सनल डेवलपमेंट हो रही है. एट द सेम टाइम दे आर ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू द GDP ऑफ द कंट्री, बिकॉज if when you export services, you are actually bringing in GDP for the country. So you're building yourself and you're building the nation. Absolutely. दूसरा सवाल मेरा है शैला जी कि हम लोग बात करते हैं यूथ की. सो एक पार्ट ऑफ यूथ तो लॉस्ट हुआ है कश्मीर में 89 ऑनवर्ड्स, और ये बहुत बड़ा नेशनल लॉस है. सिर्फ कश्मीर का लॉस नहीं, पूरे भारत का लॉस है. मैसिव लॉस. आपको लगता है कि यूथ वापस मेन स्ट्रीम की ओर आ रहे हैं? तेज़ी से नहीं, धीरे धीरे फिर भी कन्विंस हो रहे हैं कि वी नीड टू जॉइन द मेन स्ट्रीम, और उसमें कोई पॉजिटिव एंगेजमेंट हो रही है? आपको ऐसा लगता है? अगर मेन स्ट्रीम से आपका मतलब है पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम, तो मुझे लगता है पॉलिटिक्स से ना लोगों का मन भर गया है बहुत हद तक. लेकिन अगर मेन स्ट्रीम से आपका मतलब है इकोनॉमिक, yes, definitely there is a hunger for productive engagement, there is a hunger for exposure, there is a hunger for right guidance, and this is what the government needs to focus on, and we need to give it one generation. देखिए, हमारी तो पूरी की पूरी जनरेशन, हम पे जो असर पड़ा, तो ये जो हमारी जो जनरेशन थी, the ones who were born in the 90s or brought up in the 90s, हमारा तो पूरा, समझ लीजिए आप, लाइफ में बहुत डिस्ट्रप्शन हुआ. I am a textbook case of that, what happened in my life. But now I also got a chance to turn my life around, and a lot of youth are getting their, life back, because now we can actually work. We can actually, for the first time, I've said this in another podcast before this, कि पहली बार हमने देखा कि अमन शांति कैसी होती है, दिखती कैसी है. Okay. ये तो पता ही नहीं था ना पहले कि
व्हाट इज मतलब पहले ये होता था लाइक मेरी खाला वो जो है वो गुजर गई अब तो वो एक बार शी सर्वाइव्ड अ बॉम्ब ब्लास्ट वंस मतलब व्हेन हर आर्म वाज नियरली सेवर्ड माय कजिन शी वाज गोइंग टू कॉलेज कुछ टेयर गैस शेल उनको लग गया उनको यहाँ पे इंजरी आ गई ठीक है देयर इज एवरी फैमिली इन कश्मीर which has suffered some story they have of suffering. some story यानी कि आप जा रहे हैं घर से जॉब के लिए आप जा रहे हैं घर से कोचिंग करने के लिए एंड एनीथिंग कैन हैपन मतलब आपको पता नहीं था कि आपका बेटा अगर अभी निकल रहा है दिन में तो शाम को वो घर सही सलामत वापस आएगा या नहीं आएगा बट फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर सीइंग वॉट इट मीन्स मतलब वी एज इन माई जनरेशन पहली बार हम लोग देख रहे हैं वॉट इट मीन्स to go out of the home and not wonder whether you'll come back or not. Yes, whether you'll come back in one piece anyway. So, but we need to give it one generation at least. बिल्कुल शैलजा जी देखिए ऐसा है मेरा ये मानना है कि कॉन्फ्लिक्ट कहीं पे भी होता है ना इट लीव्स स्कार्स ऑन द सोल किसी का भी होगा कॉन्फ्लिक्ट होता है करता है ऐसा एंड इट डज इट टू बोथ men in uniform to civilians to kids to women everybody is impacted in some way किसी का ज़्यादा होता है किसी का कम होता है पीपल हु मे बी सीमिंग टू बी इन अ पोजिशन ऑफ अथॉरिटी हो सकता है उनका कम हो जो अथॉरिटी में ना उसका ज्यादा हो दैट ऑफ कोर्स बट एवरी कश्मीरी फैमिली हैज सफर्ड समथिंग सम वे और द अदर यस नाउ आई वांट टू आस्क यू मेरा ऐसा मानना है एंड दिस इज व्हाट आई फील पर्सनली बिकॉज आई गो टू कश्मीर सो ऑफन राइट and you have served in Kashmir. Yes, JNK I've served in JNK. Right. So you see what happens is that मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं विदाउट इग्नोरिंग द पास्ट ऑफ कश्मीर जो भी वायलेंस हुआ है और वो मुसलमानों के साथ हुआ है हिंदुओं के साथ खासतौर से कश्मीरी पंडितों के साथ none of that can be you see do you think there is scope of a truth and reconciliation commission in Kashmir एक बैठ के आवाम के साथ उसमें कश्मीरी पंडित भी बैठेंगे उसमें जिनके घर में जो लॉस हुआ है and it may be lakhs of people it does not matter the volume does not matter but एक बार आपको ना आवाम के साथ irrespective of religion आपको आवाम के साथ बात तो करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी don't you think we should at least talk to people? I'm not sure whether we are there yet or not because it has just been like the last 3-4 years of peace that has been restored and the Kashmiri Pandits they are still not sure they want to come back because they are leading good lives outside they have done good for themselves अब वो सब कुछ छोड़ के to expect them to come back to a mess where there is there is very little economic potential. I think that's also not fair. However, just as Sanjay Kishan called, when he was deciding on the Article 370 constitutional challenge, तो उसमें उन्होंने अपने जजमेंट में अपनी ऑब्जर्वेशंस में उन्होंने मेंशन किया था कि एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन सेटअप होना चाहिए जिसमें जिसका यही हीलिंग प्रोसेस जो है जिसका आउटकम हो बट एट द सेम टाइम वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस TRC process it needs to be it shouldn't be a penal it shouldn't result in penal consequences. A TRC can only succeed when it doesn't result in penal consequences. So it's more like a conversation and a process of healing. Yeah. So because I'm really not sure whether as a society we are there yet or not. I think a lot more work. In terms of accepting a peace and reconciliation? In terms of like confronting what happened there, at that time. So I'm not sure like how much of readiness there is in the society. I'm just being honest and blunt with you. I'm not sure how much of an acceptance there is of, because Kashmiri people also consider themselves victims at that point. That did they really have the power to stop anything? So I'm not sure we are there yet. आप उसकी बात करें जब पंडितों को वहां से निकाले गए उस दौरान की बात हाँ जी तो उस टाइम मान लीजिए खुदा ना करे आज वो सिचुएशन होगी So one question that the people ask is like will they have the power to stop? Is Kashmiri civil society that strong? Has the civil society been allowed to be that strong that they can stop it, that they can intervene? Did like the ordinary Kashmiri have a role in that, or did they have the power to stop that? I don't think that like there is a readiness to confront that yet. But yes, if it happens, it would be a welcome step. I just don't think we are there yet.
ओके, जैसे आपने बोला ना, कश्मीरी सोसाइटी नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू कन्फ्रंट, बट सिंस 1947 देयर वाज ऑलवेज अ कश्मीरी मुस्लिम रूलर देयर, मोस्टली इन जम्मू एंड कश्मीर. right. जब से भारत को आजादी मिली है, जब से I think the chief minister has always been Muslim, barring R.C. Kak, who was the first prime minister of Kashmir. Yeah. It's always been a Muslim chief minister. Muslim chief minister, and mostly from the valley. Yeah, Kashmir Kashmiri Ghati is से. Kashmir. Yeah, even Kashmiri R.C. Muslim. Kak was a Kashmiri Pandit. Yeah. So ऐसा क्यों हुआ कि इतने साल के बाद 88 लगा लीजिए, मैं 88 को कट ऑफ मान रहा हूँ, 89 को भी नहीं, 88 तक ऐसा क्यों नहीं हुआ कि सिविल सोसाइटी इतनी दिहाइयों में इतना डेवलप कर पाई इन सो मेनी डेकेड्स दैट दे कुड एटलीस्ट इन अ लिमिटेड वे. आई एम नॉट सेइंग दैट यू नो कि कॉमन कश्मीरी मुस्लिम शुड हैव टेकन अप वेपन्स अगेंस्ट द टेररिस्ट एंड सेड दैट ये पंडित है, मैं इसके लिए अपनी जान, नॉट दैट वे, बट एटलीस्ट रेज देयर वॉइस व्हेन दे वर आउट ऑफ कश्मीर वैली. कश्मीर वैली के अंदर तो जान खतरे में थी. जो लोग बाहर गए उनको आपको लगता है कि वॉइस रेज करना चाहिए था? I think you would have to interview someone very senior for that, because I was born in 88 itself. However, you know, someone like Wajahat Habibullah Saab, for example, he would be a good person, you know, to interview about this. But I asked myself this Wajahat question. Saab, cabinet secretary थे? He was the divisional commissioner of Kashmir when, you know, that thing happened. I think later on he was, if I'm not mistaken. Anyway, yeah, I'm not sure if he became cabinet secretary or not. So the IS person. So what I'm trying to say is I did ask myself this question कुछ साल पहले. अभी मैं बात कर रही हूँ 2021 के अराउंड या 22 के अराउंड. माइनॉरिटी किलिंग्स हैड स्टार्टेड इन कश्मीर अगेन. सो देयर वाज अ ज्वेलर who was killed in like, you know, in the city in Sarabal or something. So there was a Pandit jeweler over there. He was killed. While we were like condemning on Twitter and whatever, I just found myself asking this question: how do we actually stop this? And I don't know how to stop this. As a very empowered, outspoken Kashmiri, the best I can do is I can give statements, I can write a tweet, I can do something. What can I do physically to actually stop it? While there were people who came out, there were some candlelight marches, there was some human chain, so there was some civil society But you think organization. terrorists are not impressed by human chains and candlelight marches? They'll kill whom they want to kill. Yeah, so I don't know what we do about it. I mean, they've been killing Kashmiri Muslims. So the other day, Shazia Ilmi, who is the BJP spokesperson, she made a very good statement in Srinagar, which kind of goes towards truth and reconciliation just a little bit, which takes us like one step closer to that. She said ki Kashmiri Pandits have suffered, that's a fact, but Kashmiri Muslims have also suffered. They've been at the receiving end of terrorism for the last 30 years as well, and we are completely powerless against it. I mean, barring the village defense committees that you have in Doda, Kishtwar and all that, like that region, Pir Panjal region, Kashmir mein to is tarah ka kuch hai nahi. The government is not going to arm, like, you know, Kashmiri Muslims in the Kashmir Valley. Like, that would be like very unpredictable. That could have very unpredictable results. So we have actually no power to stop. So for example, if a militant comes to you, if a cross-border infiltrant comes to your house with a gun and asks for shelter, what power do you have? I think you're powerless. You're pretty powerless. So I think in this whole truth and reconciliation process towards this, one thing that needs to be understood is that, you know, or what needs to be asked is how much power Kashmiris actually held, you know, in those situations. So I also found myself asking that question when minority killings happened recently, and I was like, you know, what can we do? And I was asked on a podcast, I think Smita Prakash asked me on the podcast, ki, do you think Kashmiri Pandits can go back? And I was like, I don't know. I'm not sure. The situation is so volatile, like any day anything happens. And it's not just minority killings. Some police person, there were targeted killings of police personnel, like SHO को मारा गया, एक SI को मारा गया. वो अपने बच्चे के साथ गया था नमाज पढ़ने, उसके पीठ पे गोली मार दी. एक तो वो SHO है, वो सोरा के वो क्रिकेट खेल रहे थे वहाँ पे, and he was just like shot dead. So what do I say to Kashmiri Pandits? Like when I ask them to come back, I'm not so sure. Like on what grounds can you ask them to come back? Justification क्या, मतलब आप क्यों आओगे वापस? मतलब हम खुद नहीं सेफ है तो हम आपको क्या बोलेंगे?
अच्छा, एक बात बताइए शैला जी, मैं बात करना चाहता हूँ, जैसे हमने ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन की बात करी, एक प्रॉब्लम वहाँ पे रेडिकलाइजेशन की भी है, और वो रेडिकलाइजेशन हुआ है, इसमें जमात इस्लामी भी इन्वॉल्व था एक ज़माने में, और इसमें क्रॉस बॉर्डर रेडिकलाइजेशन भी हुआ है इंटरनेट का इस्तेमाल करके। वो बड़ा फेमस एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि आदिल अहमद डर जो था, पुलवामा का जो सुसाइड बॉम्बर था, ही वॉज अ लोकल, ही वॉज नॉट अ पाकिस्तानी, बट और वो था भी बड़ा यंग, 22-23 साल का था। उसको किसी ने तो उसको दिमाग में ये सब चीज़ें डाली कि गिविंग योर लाइफ फॉर एनी पर्पस, आपको बहुत कोई बड़ी चीज़ लगती होगी, लेकिन गिविंग इट्स नॉट एन ईजी डिसीजन फॉर अ ह्यूमन बीइंग, बिकॉज दैट इज द मोस्ट प्रेशियस थिंग दैट यू हैव, आपकी ज़िंदगी। उसको क्या, ये जो रेडिकलाइजेशन है, देखिए है वो, मैं आपसे सवाल ही नहीं पूछ रहा, आई एम नॉट आस्किंग यू, माई क्वेश्चन इज हाउ डू वी इंटरैक्ट विद द कश्मीरी सोसाइटी टू गेट द लेवल्स ऑफ रेडिकलाइजेशन डाउन, क्योंकि दिस इज वेरी वेरी डेंजरस एंड इज डेंजरस टू द सोसाइटी इटसेल्फ। बाहर वालों के लिए तो जो है सो है, वो बात की बात है, इट्स वेरी डेंजरस फॉर द पीपल हु लिव देयर। सो how do we get the level of radicalization down in the valley? Simple answer, we have to empower Kashmiri Muslims, in fact, to do this work. And I would like to mention the work of some very notable Kashmiri Muslim boys who are doing this work, such as Mudassir Dar, Wajahat Farooq Bhatt. These are guys from Pulwama who are doing this work, and they are working with Maulvis, because most of these Maulvis, they are they're not very highly educated, they're not very highly traveled, they're not very exposed. तो आपका और मेरा exposure level जो है different है, हम अलग ही level पे बात कर रहे हैं। लेकिन जो मौलाना होते हैं, जो मस्जिद में preach करते हैं, तो उनके लिए there should be more programs, and it has to come within a community. You cannot ask a Hindu to train a Maulvi Sahab, you can only ask a Muslim to train. Yeah. So recently Mudassir Dar, he got the Youth Icon Award from the DC Pulwama on the Independence Day. So these are people from within the community who are what we need to do is we need to contextualize the teachings of the Holy Quran for people, and the Maulanas are the they are the touch point, they are the point of contact for the community. And when we are talking about, जैसे कुरान मजीद में कई जगह पर लिखा हुआ है जुल्म, जालिम, काफिर, इसको ना थोड़ा contextualize करना पड़ेगा, क्योंकि these were written in a certain specific context when Islam was just being propagated and there were a lot of enemies of Islam. We don't live in that context anymore. It's a free मतलब उस टाइम पे इस्लाम पे खतरा था, यहाँ पे तो कोई इस्लाम पे खतरा नहीं है। इंडिया में we have the full freedom to practice Islam whichever way we want, चाहे हम लोग शिया, सुन्नी, आगा खानी, बोहरा, जो कोई भी सेक्ट के हों, हमसे कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आगे हमसे नहीं पूछने वाली है कि आप ऐसे क्यों प्रे कर रहे हो, आप ऐसे क्यों नहीं प्रे कर रहे हो। इनफैक्ट वो होता है, वो इस्लामिक कंट्रीज में होता है कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, वो नमाज भी पढ़ के वहाँ पे। हाँ जी, here we have full religious freedom. So this these teachings of Quran जहाँ पे ये बोला जा रहा है जालिम, काफिर, जिहाद, ये सब चीज़ें, इनको कंटेक्चुअलाइज करने की ज़रूरत है। बिकॉज ऐसे देखिए, ऐसे आप कोई भी होली टेक्स्ट उठा लेंगे किसी भी रिलीजन का, उसमें इस तरह की चीज़ें हो सकता है लिखी होंगी, कोई चीज़ें आपको मिलेंगी वेमेन के अगेंस्ट मिल जाएंगी, स्लेवरी पर मिल जाएंगी, जो ऑब्जेक्शनेबल होंगी। लेकिन नाउ वी नीड टू, एज अ कम्युनिटी वी नीड टू कंटेक्चुअलाइज। सो इसमें जो है, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन डू कैपेसिटी बिल्डिंग trainings for Maulanas, for example, who are preaching in the mosques. There can be some requirement of certification, for example. मान लीजिए आप अगर आज यूपीएससी की कोचिंग, आप यूपीएससी टीचर बनना चाहें, तो एटलीस्ट आपकी क्वालिफिकेशन होगी कि आपने 2-3 बार मेंस दिया हो, ये आपकी क्वालिफिकेशन होगी। तो for becoming a Maulana, there has to be some kind of certification. There should be some kind of it can even be a training. Government of India can train without making it feel like कि हम आपके इस्लाम को अटैक कर रहे हैं. It can be sect specific. शिया मौलानाज की अलग से हो सकती है, सुन्नी मौलानाज की अलग से हो सकती है. पर इसमें तो कई सारे फिरके हैं कि सुन्नियों में कितने हैं, देवबंदी हैं, फिर बरेलवी हैं, फिर उनमें 7ers हैं, फिर उनमें 12ers हैं, फिर उनमें सबका तो अलग अलग मैटर है. Needs to be figured out. But this is something that can be done. But you're saying that ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे इंटरफेरेंस हो रहा है, because
will take it otherwise. फिर ये नहीं बोला जाना चाहिए कि अब जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें अब प्रैक्टिस नहीं करने दे रही है रिलीजन, नहीं, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हिफ्ज़ कुरान आप करें आराम से, आप अपनी आप तिलावत करें, आपको जो कुछ भी करना है आप करें, लेकिन जस्ट कंटेक्चुअलाइज इसको, थोड़ा सा आप कॉन्टेक्स्ट में देखें कि आज कोई जालिम मजलूम नहीं है। इंडिया इज़ अ फ्री कंट्री। यहाँ पे आप IAS अफसर बनना चाहते हैं बन सकते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं बन सकते हैं, आर्मी में जाना चाहते हैं तो आर्मी में जा सकते हैं। इनफैक्ट मैं चाहती हूँ कि मुझे भी जो मेरे व्यूअर्स जो हैं, जो मेरी फॉलोइंग है, मुझे जो मुस्लिम बच्चे फॉलो करते हैं, मैं चाहती हूँ आप उनको बताएं कि जैसे CDS के जो एग्ज़ाम्स होते हैं या कैसे होता है, हमें तो कोई अवेयरनेस ही नहीं है कि किस तरह से आर्मी में जाना होता है। सो आप थोड़ा बताइए उस पर कि किस तरह से जाना होता है आर्मी में। मैं तो बताऊंगा भी, और मैं कश्मीर में जाके भी आई रिक्वेस्ट समबडी द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इफ दे कैन हेल्प मी, और वहाँ पे जो बच्चे हैं ये काम वैली में जाके ज़्यादा अच्छा होगा, पॉडकास्ट पे तो अभी बता देता हूँ। राइट। तो दो तीन तरीके हैं इफ़ यू वांट टू जॉइन द आर्मी एज एन ऑफिसर, बोथ वुमेन एंड मेन। अगर आप NDA से जाते हैं तो 12वीं के बाद, बट आप 12वीं के दौरान वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये UPSC का एग्ज़ाम है और सारी डिटेल्स आपको UPSC की वेबसाइट पे मिल जाती हैं, राइट। और नॉर्मली जो टेस्ट होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, इंग्लिश के होते हैं, GK के होते हैं, मैथ्स के होते हैं, और वो 10th क्लास की मैथ्स होती है वैसी होती है। GK थोड़ी सी उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। मैथ्स इज़ वेरी बेसिक, इंग्लिश इज़ नॉर्मल। तो ये CDS का एग्जाम है? ये NDA का भी है, CDS का भी, सबका एक ही जैसा है, बट थोड़ा सा CDS का हल्का सा। क्या है इस एग्जाम को? NDA का एग्जाम है, CDS इज आफ्टर ग्रेजुएशन। CDS इज आफ्टर ग्रेजुएशन। तो विद CDS यू गो टू OTA और यू गो टू IMA। ओके, मैं आर्मी की बात बता रहा हूँ जी। तो फिर अच्छा, NDA में जैसे बच्चा गया 12th के बाद तो वहां पे चला गया, तो वहां पे ग्रेजुएशन करवाते हैं उसको, और JNU का उसको डिग्री मिलती है। हाँ, NDA इज एफिलिएटेड टू JNU, ठीक है जी। तो उनको वहाँ से वो डिग्री मिलती है ग्रेजुएशन की, और 2 साल के बाद देन 3 साल का NDA होता है, तो 2 साल के बाद देन दे ब्रांच आउट इनटू दी, वो आर्मी की स्ट्रीम अलग है, नेवी की अलग है, एयरफोर्स की अलग है, एंड देन दे फर्दर गो आफ्टर 3 years टू डू स्पेशलाइजेशन ट्रेनिंग। सो आर्मी वाले जैसे दे गो टू IMA देहरादून एटसेट्रा, तो एजीमला चले जाते हैं नेवी वाले, एंड एयरफोर्स वाले अपनी एकेडमी में चले जाते हैं। दैट इज हाउ दे डू इट। ये बड़ा मुझे पैशन है इस चीज़ का कि वैली में ना जो बच्चे हैं, तो आप करिए ना थोड़ी, आपको हम बुलाएंगे करियर काउंसलिंग के लिए वहाँ पे। हाँ। क्योंकि वी हैव नो, देखिए आई वाज 35 years old when I got to know about CDS exam. You understand, we have no awareness, like बहुत कम वहाँ पे अवेयरनेस है। सो व्हाट आई वांट टू से, ये कहाँ से आया, ये डिस्कशन कहाँ से आया कि मुस्लिम्स के बीच में we need to have more awareness कि इंडिया इज़ अ फ्री कंट्री, इट इज़ एन ओपन एंड डेमोक्रेटिक सिस्टम। हाँ, कई जगह पे चलती हैं सिफारिशें, कई जगह पे पेपर लीक होते हैं, लेकिन कम से कम जो कंपेटिटिव एग्जाम्स हैं वहाँ पे वी टेंड टू डू वेरी वेल। आप देखें UPSC में जो है कितने टॉपर निकलते हैं कश्मीरी। इसी तरह से जैसे CDS का एग्ज़ाम है कम्प्लीटली मेरिटोक्रेटिक, एंड उसमें लाइक वी कैन हैव अ बेटर चांस। या मान लीजिए एम्स का एग्ज़ाम, AFMC वगैरह, वी नीड टू हैव मोर अवेयरनेस ऑफ दिस। कोई भी धर्म पे कोई भी अटैक नहीं है, कोई भी हमें मना नहीं कर रहा है नमाज पढ़ने से। इनफैक्ट मैंने तो ये देखा है कि जब मैं व्हेन आई यूज्ड टू प्रे नॉट 5 times a day, आई यूज्ड टू प्रे 6 times a day, क्योंकि मैं तहज्जुद गुजारती, मैं उस टाइम तहज्जुद भी पढ़ती थी। आई यूज्ड टू डू सो मच बेटर इन academics. So actually Muslim students, while following their faith, they can do very well in academics. There is absolutely no conflict. So this is what we need to focus on. रेडिकलाइजेशन कहाँ से आती है, रेडिकलाइजेशन के सोर्सेज क्या हैं, उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए, एंड फ्रॉम विद इन द कम्युनिटी वील हैव टू एम्पावर द कम्युनिटी टू टॉक अबाउट इट। सो यहाँ पे लेकिन मैं एक बात ये भी बोलना चाहूँगी कि if we have to empower Muslim community to speak against radicalization, then we also need to rein in those people जो Muslim community को दिन रात जिहादी, पाकिस्तानी, and I don't want to repeat the other words, you know what the words are, वो पार्लियामेंट तक में बोले गए। There is a need to rein in those people who also vilify the Muslim community, because उससे क्या होता है कि जो हम जैसे लोग होते हैं who want to talk about reform in the within the Muslim community, we lose face in the आपका स्पेस कम हो जाता है, स्पेस कम हो जाता है, एंड पीपल आस्क अस दैट क्वेश्चन, राइट, कि यू आर सेइंग, आप तो बोल रहे हो कि भारत में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, लेकिन फिर लोग ऐसे बोल रहे हैं। अच्छा, अब कोई रैंडम लड़का कुछ बोले तो तब अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट पार्लियामेंट में जिस तरह की बातें बोली जा रही हैं, अगर उस तरह की शब्दावली नहीं इस्तेमाल हो पार्लियामेंट में, तो हम जैसे लोगों को भी वी हैव अ बेटर चांस at working on de-radicalization. There's something that I want to say here. An ordinary Muslim
living in India, when he or she wakes up in the morning, our first thought is not कि हमें हिंदू टेम्पल जलाना है, आज मुझे कौन सा हिंदू टेम्पल डिस्ट्रॉय करना है. नो, दैट्स नॉट व्हाट वी थिंक. वी थिंक अबाउट ब्रेकफास्ट टाइम पे करना है, आज मुझे मेट्रो टाइम पे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, सो दैट आई कैन रीच माई ऑफिस इन टाइम. आज मुझे जो है ये एक्सेल शीट करके भेजनी है. दिस इज व्हाट the ordinary Muslim is thinking. So highlight that. So there was a book written in 2014. I don't know how many people know about it. Mr. Hassan Surur, उन्होंने एक किताब लिखी थी, India's Muslim Spring and why nobody is talking about it. देखिए बुक का जो मेन आर्ग्यूमेंट है, बुक का मेन आर्ग्यूमेंट ये है कि आज जो मुस्लिम है वो ज़्यादा रिलीजियस हो रहा है, लेकिन वो ज़्यादा सेक्युलर भी हो रहा है. यानी कि उसके कहने का मतलब ये है कि वो हिजाब भी पहन रहा है, वो 5 वक्त नमाज भी पढ़ रहा है, देयर इज़ ग्रेटर अवेयरनेस अबाउट रिलीजन, बट एट द सेम टाइम उसको कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है हिंदू से या इंडियन आइडेंटिटी से. ही इज़ जस्ट एट पीस, ही इज़ वर्किंग. वो अपना वो टेक का कर रहा है, कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है. यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर आर 200 million Muslims in India. Just like every Muslim is not a terrorist, every Hindu is not a zealot. Both communities need to understand that. So अब कश्मीर में maybe we may not be ready for truth and reconciliation and all that, but at least at the larger national level I'm talking about, there need to be more interfaith forums. There needs to be more interfaith harmony. There needs to be more interfaith empathy. You and I, we need to connect as Indians. We need to put that first. And that community identity, आप अपना घर पे नमाज पढ़िए, आप पूजा कीजिए, आपको जो करना है आप करें, but you have to think as Indians first. So that is the mindset change. अगर हमें एक विकसित भारत बनाना है, अगर हमें एक developed nation बनाना है, we can't be forever, divided into this Hindu, Muslim. अच्छा, now about de-addiction, this is something that we discussed before we started recording. De-addiction कश्मीर में और ये मैंने देखा इसमें पैरेलल्स हैं पंजाब के साथ. एक तो कश्मीर का बॉर्डर थ्रू द लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान के साथ लगता है, थ्रू द इंटरनेशनल बॉर्डर पंजाब का पाकिस्तान के साथ लगता है. कश्मीर की एक लेवल पे कॉमन लैंग्वेज भी है, ख़ास तौर से वो कश्मीरी तो अब वहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल के पार कम रह गए हैं बहुत. जनरली पहाड़ी, डोगरी, सम वेरिएंट ऑफ दैट लैंग्वेज इज़ ऑल्सो स्पोकन देयर. कॉमनैलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं बिकॉज लकीर खींच के आप कल्चर तो नहीं बदल सकते, ठीक है, यू कांट चेंज द कल्चर. सो द कल्चर इज़ मोर और लेस. नाउ व्हाट हैज़ हैपेंड इज़ दैट लॉट ऑफ इनिशियली स्टार्टेड विद पंजाब. कश्मीर में शुरू में इतना नहीं था, पंजाब से शुरू हुआ ये, क्योंकि पंजाब की जो प्रॉब्लम थी वो कश्मीर से पहले शुरू हुई. वायलेंस आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस सेंस ऑफ वायलेंस, दिस स्टार्टेड ऑफ बिफोर. नाउ द थिंग इज़ दैट पंजाब में ड्रग्स आने शुरू हो गए और बहुत ज़्यादा ड्रग्स का इस्तेमाल पंजाब में आज भी होता है. मेरा ये कहने का मतलब नहीं कि यूपी में नहीं होता है या दिल्ली में नहीं होता है, बॉम्बे में नहीं होता, लेकिन पंजाब में जानबूझ के करा गया है. पंजाब के लोग ऐसे थे नहीं, जानबूझ के ऐसा करा गया है एक साजिश के तहत. वहाँ पे ड्रग्स को आसानी से फराहम किया गया है कि जब अवेलेबिलिटी होगी, जब एक्सेसिबिलिटी होगी तो इस्तेमाल भी करेंगे लोग. और एक बार उनको आदत लग गई, फिर उसके बाद दे विल समहाउ मैनेज. किसी को जो कुछ उठाना है, घर की चीज़ बेचनी है, जिसको जो चाहिए वो लेगा. ये दिस इज़ अबाउट पंजाब. So a lot of the stuff comes from across from Pakistan and same is happening in Kashmir Valley also. घाटी में, वैली में, कश्मीर में. और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कश्मीर में. लेकिन क्योंकि सोसाइटी काफ़ी ट्रेडिशनल है और कई जगह ऑर्थोडॉक्स भी है, श्रीनगर के बाहर तो ज़्यादातर ऐसी है, पीपल आर हेजिटेंट टू टॉक अबाउट इट. एक सेंस ऑफ शेम भी है कि लड़का ड्रग एडिक्ट है ना, तो एक सेंस ऑफ वो शर्म भी है कि यार हमारे ख़ानदान के बारे में लोग, मोहल्ले वाले क्या बोलेंगे कि यार ये लड़का है आपका, ऐसे काम करता है. ये इसको कैसे आपको लगता है एड्रेस करना? बिकॉज मुझे लगता है बहुत सीरियस चीज़ है ये ड्रग्स वाली प्रॉब्लम. मैं ये नहीं कह रहा कि I'm not talking about the percentage of people who are using it. That is not my intent. I'm just saying any usage is very serious, especially in a border state like Kashmir. और वो भी इंडियन, उनको भी तो वही नुकसान हो रहा है जो बम्बई वाले को हो रहा है, दिल्ली वाले को हो रहा है. Well, it takes away the productive population because mostly जो drug users होते हैं वो young age के होते हैं, and that is the productive population. So if we want to be a developed nation, certainly we need to address it. लेकिन ये एक multi-layered problem है. जिस तरह से आपने कहा कि पहले तो आजकल तो मैंने सुना है कि ड्रोन से जो है पैकेट ड्रॉप किया जाता है अक्रॉस द बॉर्डर, क्योंकि बॉर्डर इतना क्लोज है
कि आप ड्रोन से जो है अनमैन्ड, नाउ देयर इज नो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नीडेड। तो इसको बहुत सारे लेवल्स पे एड्रेस करना चाहिए। मतलब पहली बात तो बेटर ड्रग कंट्रोल्स, सेकेंड थिंग वी डोंट हैव दैट मेनी रिहेबिलिटेशन और ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स। आज अगर किसी का लड़का इसमें मुलविस हो तो मतलब मुझे लगता है SMHS हॉस्पिटल है एक, और एक आध दो जगह होंगे, मुझे पता नहीं है। उनके अलावा कोई उतने ज़्यादा रिहैब सेंटर्स है नहीं। जैसे वेस्ट में आप देखेंगे, वेस्ट में इवन सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो वहाँ पे कंफर्टेबल फील करते हैं। मतलब वहाँ पे 5 स्टार फैसिलिटीज़ हैं जहाँ पे फिर स्पोर्ट्स भी होता है। वहाँ पे वो नहीं दिखते हैं आप मूवीज़ में जैसे दिखाते हैं कि वो बैठ के बात भी कर रहे हैं अपने ड्रग प्रॉब्लम, जैसे अल्कोहलिक्स अनोनिमस टाइप का ग्रुप डिस्कशन भी हो रहा है। हाँ, तो अभी के जो फैसिलिटीज़ हैं मुझे पता नहीं है कि वो उतने अच्छे हैं कि नहीं, वहाँ पे सब लोग जा पाएँ या नहीं। सो दैट इज़ सेकेंड थिंग, जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स है उनको जो है दैट विल नीड टू बी डेवलप्ड। But the most important thing is productive and gainful employment. The most important thing is productive engagement. Once that happens, मतलब ऐसा हो क्यों रहा है, मतलब लड़के बिना जॉब के अनएम्प्लॉयड जा रहे हैं पहाड़ी में, दे स्मोक। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हमारे रीजन में एक्चुअली दैट मैरिजुआना इट ग्रोज नेचुरली, सो उसी को रोल करके वो खुद से ही बना लेते हैं, यू नो, लाइक दैट्स द गेटवे ड्रग। एंड देन like by the time you have reached things like heroin, जिससे मतलब निकलना ही impossible है, तो तब तक it's too late। लेकिन वो जो गेटवे ड्रग है कैनबिस, उसी में आप कैसे जा रहे हैं, आप बैठे हुए हैं दिन भर वेले बैठे हैं, कोई काम नहीं है, आप पहाड़ी में जा रहे हैं ऊपर, यू जस्ट यू नो रोलिंग दोज लीव्स कर रहे हो, आप स्मोक, कोई पूछताछ नहीं है। सो gainful employment, productive engagement, skill development, this is my answer to it। because अब जो लोग हेरोइन तक ले रहे हैं उनके साथ तो rehabilitation is very difficult because the relapse rate is so high, so you have to nip it in the bud that even if drugs are available, people, देखिए ऐसा नहीं है, you and I both know कि पार्टीज होती हैं दुनिया भर में, मैं हिंदुस्तान को छोड़ दीजिए, मैं यहाँ की बात नहीं कर रही हूँ, दुनिया भर में पार्टीज होती हैं, रेव पार्टीज होती है, टेक्नो पार्टीज होती हैं, वहाँ पे चलता है, वहाँ पे ड्रग्स चलता है। बट देन people go home and they go back to their jobs and they have a routine which they, you know, which they need to show up for। मतलब अगर उनका ऑफिस है 10 बजे, they need to show up for it। जब आपका वो होता ही नहीं है, आप पूरा का पूरा ड्रग्स में, मतलब ये आपका फुल टाइम काम बन जाता है। सो माई आंसर टू दैट इज दैट वी नीड टू फाइंड वेज ऑफ एंगेजिंग कश्मीरी यूथ in productive activities, skill development, in you know, anything like government can open more sports centers for example। तो जिन यूथ की मैंने आपको एग्जांपल दी, वजाहत हो गया, मुदस्सिर is working really hard in Pulwama for example, because Pulwama is the main, you know, it's been in recent years the hub of insurgency, so he's working really hard to, you know, organize sports events in, you know, for the youth, because the youth needs something to do, you know। सो स्पोर्ट्स नीड्स टू बी डेवलप्ड मोर। उसमें आप देखिए कितने अच्छे रिजल्ट्स हमें जम्मू एंड कश्मीर से मिले हैं विद वेरी लिटिल इन्वेस्टमेंट। हाउ गुड देर आर, लाइक अभी रिसेंटली कुछ लड़कियां हैं जिनको अवार्ड भी मिला था गवर्नमेंट की तरफ से, सुमैया एंड इंशा उनका नाम है, उन्होंने एक फिल्म बनाई, शॉर्ट फिल्म उन्होंने बनाई विमेन एथलीट्स ऑफ कश्मीर पे। तो ये एक चीज़ है, स्पोर्ट्स जो है वो ज़्यादा हमें मतलब ऐसे एवेन्यूज ज़्यादा चाहिए। नहीं, मैं इसलिए भी पूछ रहा था ड्रग्स के बारे में, बिकॉज इट इज़ नॉट सिंपली ड्रग्स, लाइक it is a narco terrorism network, so any gray market thing, it can easily feed into terrorism, it can be easily used to fuel terrorism। क्योंकि देखिए जो हेल्थ पे असरात हैं वो तो दिल्ली में भी वही हैं और कश्मीर में भी वही हैं, तो उन दोनों में तो हेल्थ पे असरात नहीं, लेकिन उसके जो मैनिफेस्टेशंस हैं लाइक नार्को टेरर, यू कैन सी दैट इन पंजाब टू सम लेवल। वो पंजाब में काफ़ी हद तक न्यूट्रलाइज हो गया है वैली में, because that is how, and it's not necessary that वो ड्रोन से ही भेजें, it all comes through Nepal also। A lot of these Lashkar and Jaish terrorists, they infiltrated through नेपाल से आके इंडिया में, बिकॉज यू कैन वॉक थ्रू टू इंडिया, आप पैदल चले जाइए, आपको कोई फ्लाइट का चक्कर तोड़ना है, फिर वहाँ से आपने ईस्टर्न यूपी से, बिहार से, जहाँ से भी आपकी बॉर्डर क्रॉसिंग है, खासतौर से दैट गोरखपुर साइड एंड ऑल दैट, आप वहाँ से आ गए, आप वहाँ से ट्रेन में बैठे, ट्रेन से आप तो कश्मीर तक ट्रेन जाती है, देन यू डिसअपियर एंड यू गेट समबडी गिव्स यू योर आधार कार्ड एंड ऑल दैट। सो इस लिंक में बड़ा टेररिज्म फैलता है। अच्छा, ये भी जानना मैं, वी आर टॉकिंग अबाउट कश्मीर ओनली, अभी तो आज का एजेंडा ही हमारा यही है। तो
आर्मी डज समथिंग कॉल्ड सद्भावना, आपको पता ही होगा। तो सद्भावना का क्या इम्पैक्ट रहा है? आई वॉन्टेड टू आस्क यू दिस क्वेश्चन इन द बिगिनिंग, बट आई सेड कि हम लोग एज वी डेवलप देन वील गो टुवर्ड्स इट। सद्भावना का क्या इम्पैक्ट रहेगा? आर्मी गुडविल स्कूल्स हैं, आर्मी के वोकेशनल सेंटर्स हैं, ये सब है, तो इसका क्या इम्पैक्ट रहा है? I have not studied it carefully, अच्छा, so I don't know how much. okay. Would you like to answer that? Yeah, I can certainly answer. What Army has done is, apart from Army Goodwill Schools, which are more than 2.5 dozen Army Goodwill Schools all over J&K, in which kids study, locals also, mostly locals, ये स्टडी करते हैं। फिर स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स हैं आर्मी के, आर्मी का सुपर 30 है, in which they train kids for IITs and all that. Oh yes, right. ये देखा, सुना था Yes, आपने? yes, yeah. हाँ, वो थोड़ा सा ज़्यादा मीडिया में Popular, आ गया ना, हाँ, पॉपुलर yeah, आ गया। हाँ. They train kids to join NDA and IMA, वहाँ पे भी आर्मी पूरा कर रही है। And also what we have in the army called aid to civil authorities, यानी कि जब कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है, something which is Right, of course, yeah. Army is the first one to step in natural disasters, yeah, हाँ, yeah. उसके अलावा भी और कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स आते हैं गांव में ना, वे पीपल आस्क फॉर हेल्प। ये बड़ा कॉमन है, जो कंपनी कमांडर है ना, उसके पास आप मदद के लिए पहुंच गए कि साहब देयर इज अ प्रेग्नेंट वुमन एंड शी इज अबाउट टू डिलीवर। अब 5-5 फुट बर्फ गिरी है, But yeah, we've seen those videos from Kupara. हाँ, तो ये कंधे पे उठा के ना, सो ये करते हैं। वो तो खैर कहीं पे भी करते हैं, वहाँ पे सद्भावना होता कि नहीं होता, दैट फौज विल डू, बट सद्भावना इज ऑल्सो यू नो समवेयर अलोंग द वे आई थिंक द इंडियन आर्मी। ये इंटरव्यू उल्टा नहीं हो गया, मतलब आई एम सपोज टू आस्क यू क्वेश्चंस, आप मुझसे पूछ रहे हैं, लेकिन Because you are more experienced, so like. नहीं, कोई नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि देयर इज दिस बिलीफ दैट वी आर अ फोर्स ऑफ गुड एंड वी वांट टू डू गुड, एंड कोशिश करके, एंड जो आवाम है ना, आवाम के साथ अपने कॉन्टैक्ट पॉइंट, आपके आवाम के साथ क्या कॉन्टैक्ट पॉइंट हैं? कॉर्डन एंड सर्च है, सर्च एंड डिस्ट्रॉय मिशंस हैं, सिर्फ वही है, या तो आपके लोग हैं, आप फैसला करिए कि दुश्मन है तो वो फैसला करिए, दुश्मन है तो बम मारिए, और अपने लोग हैं तो उनके साथ फिर काम करिए। सो व्हाट द आर्मी हैज इवॉल्व्ड ओवर ए पीरियड ऑफ इयर्स इज IBO, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस। खबर मिलती है, वो दिन चले गए, वो कॉर्डन एंड सर्च की 2-3 बटालियन घूम रही हैं वहाँ पे, वो सब जो हमारे टाइम पे होता था, दैट इज नाउ प्रीटी मच ओवर एंड डन विथ। एंड नाउ व्हाट द आर्मी डज इज दैट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज कॉन्टैक्ट विद द पीपल, कॉन्टैक्ट विद द पीपल, क्योंकि ये जो है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन बिकम वेरी चैलेंजिंग इन J&K, बड़ा मुश्किल हो जाता है, वाइल द लोकल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इज डूइंग हिज बिट, राइट, बट no government organization has the reach of the Indian Army. It simply does not exist. Right. आपका कितना भी आपके अच्छे विचार हों या अच्छा मन हो या आप कुछ करना चाहते हो, वो जो रीच इंडियन आर्मी की है, क्योंकि इतना फैली हुई ना गांव-गांव में इंडियन आर्मी, एंड प्लस इट हैज इंफ्रास्ट्रक्चर, सो लाइक अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है एंड यू गिव अ कॉल, दैट थिंग गेट्स डन इमीडिएटली। एंड आई होप दैट द गवर्नमेंट कम्स अप टू स्पीड, बिकॉज कश्मीर का जो टेरेन है वो इन काम के लिए ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है, इट्स वेरी चैलेंजिंग टेरेन बाय द वे। वैली की कुछ जगह तो ऐसी हैं, तंगदार वंगदार में कोई टंग गया तो बिल्कुल नहीं, इज परमानेंटली देयर, इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो आई एंड दिस पॉडकास्ट बाय आस्किंग यू वन फाइनल क्वेश्चन, वेयर डू यू गो फ्रॉम हियर? स्टूडेंट पॉलिटिक्स वो एक था, राइटिंग बुक्स ये एक है, एकेडमिक्स में यूर इंटरेस्टेड ये, एंड आई वॉन्ट योर आंसर in the framework of Kashmir. In the framework of Kashmir. Because अभी तो हम नोएडा में बैठे हुए हैं. Right. Framework of Kashmir. Where do you go from here? I mean, I don't see Kashmir as like separate from the mainland. So I guess my answer, I have to disappoint you. My answer is more pan-India in its nature. I want to make impact. That's the one thing that I ask myself every day I wake up in the morning. My question to myself is that what is your impact? And the impact that I want to make, for example, through my first book, which is about Indian Muslim achievers and role models, is to showcase a positive side of our community. देखिए, हम लोग कंप्लेन करते रह जा सकते हैं कि मीडिया वाले गलत दिखा रहे हैं, फिल्मों में नहीं दिखा रहे हैं अच्छे मुस्लिम्स को, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो? So my question to myself as an individual and as a community also is कि ठीक है, अगर ये नहीं कर रहा है तो तुम कर लो ना।
अगर कोई इंटरफेथ, अगर आप कह रहे हो कि हमारे मुल्क में कम्युनल हार्मनी नहीं है या कम है या इनफ नहीं है, आप क्या कर रहे हो उसको बिल्ड करने के लिए? आप एज एन इंडियन मुस्लिम्स, आप एज एन इंडिविजुअल, आप एज अ कम्युनिटी, एज एन ऑर्गेनाइजेशन, आप क्या कर रहे हो? सो मैंने वो सवाल पूछना बंद कर दिया है कि यहाँ पे अगर गड्ढा है क्यों है। आज मेरे से क्वेश्चन ये है कि आज अगर यहाँ पे गड्ढा है, आप इसको फिक्स करने के लिए क्या कर सकते हैं? सो व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू मेक इम्पैक्ट, एंड आई वांट टू मेक इम्पैक्ट एट अ नेशनल लेवल, एंड दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू विद माय फर्स्ट बुक, दैट आई वांट there to be empathy between communities. I want there to be more Hindu-Muslim bhaichara. I don't want to just complain about it कि वो हो रहा है, ये हो रहा है, lynching हो रहा है. I want to build bridges, and it's a very small step. It's a baby step, you can say. By doing this, by writing my first book about Indian Muslim achievers, what I'm trying to do is जब आप उस किताब को पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि इनकी same struggles रहे हैं जैसे आपके स्ट्रगल्स रहे होंगे, जैसे किसी भी और के स्ट्रगल्स रहे हैं. तो ये जो इंस्पिरेशनल फिगर्स मैंने लिए हैं, they have struggled just like any other Indian has struggled. So it's a very small sort of contribution, but my idea is to make a big impact. there is another hero from Kashmir, Lieutenant Umar Fayaz, 2nd Battalion, the Rajputana Rifles. Right. And very tragically, we lost that officer. Yes. The terrorists attacked. Very, very brave officer, and it's always I wish to go to Kashmir and tell the kids, जो स्कूल के बच्चे हैं ना छोटे छोटे, I want to tell them the story of Umar Fayaz. उनको बहुत ज़रूरी है जानना कि आपकी मिट्टी से ऐसा भी एक बंदा निकला है. हाँ जी. Who did not flinch. देखिए ऐसा होता है ना कि बड़े बड़े सूरमा बंदूक के आगे ना उनके पैर कांपते हैं. बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े हीरोज when faced with a weapon. So I think there is also a story of strength of character here, right, as far as Umar Fayaz is concerned. I think I could disagree with you on 1 or 2 points, but one point that I'll agree with you on is that मुझे भी कश्मीर में ज़्यादा टूरिस्ट पसंद नहीं है भाई. मुझे नहीं ज़्यादा पसंद है. ये लोग बहुत, ये डल लेक में लेस चिप्स के पैकेट फेंक के पता नहीं क्या इन लोगों ने बिल्कुल गंद मचा रखा है वहाँ पे. एनीवे, व्हाट कैन वी डू? इट्स अप टू द गवर्नमेंट. आई कैन नॉट स्टॉप. थैंक यू वेरी मच शैला जी फॉर कमिंग ऑन आवर पॉडकास्ट, एंड इट वाज अ प्लेजर. एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, विद शैला राशिद जी, शी इज कम हियर ऑल द वे, एंड हमने इनसे बात करी ना. आइडिया इस पॉडकास्ट का क्या था? साहब ये नहीं पूछा, वो आइडिया ये था कश्मीर में आगे क्या, क्योंकि कभी ना कभी आपको आगे जाना पड़ेगा. ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन की बात करी, डी रेडिकलाइजेशन की बात करी, डी एडिक्शन की बात करी, इंडियन मुस्लिम्स की बात करी. आई होप आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा दोस्तों, और अगर पसंद आया है और नहीं भी आया है कोई बात नहीं, आप जरूर कमेंट्स में लिख के हमें बताइए. गिव अस अ फीडबैक, वी विल ट्राई एंड डू बेटर. शैला जी, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच. आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद ये पॉडकास्ट देखने के लिए. जय हिंद.